Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about the entitled theme, Group Factor Theory of Intelligence. Dear students, Group Factor Theory of Intelligence is propounded by one of the eminent psychologists, namely Thurston. Lewis Leon Thurston was an American psychologist who was born on 29th May 1887 in Chicago, United States of America, and he died 29th September 1955. थर्स्टन का जन्म शिकागो में 1887 में हो चुका और उसकी डेथ 1955 में हो चुकी. On the basis of psychometric methods, Lewis Leon Thurston has developed or propounded the theory. That theory is known as Group Factor Theory of Intelligence. And this theory is propounded in the year 1937. यानी कि इस थ्योरी को डेवलप और डिजाइन किया लियोस लियोन थर्स्टन ने 1937 में. Psychometrics generally refers to specialized fields within psychology and education devoted to testing, measurement, assessment, and related activities. Psychometrics is concerned with the objective measurement of latent or hidden constructs that cannot be directly observed. For example, intelligence, personality traits, mental disorders, and educational achievements. Dear students, psychometrics is actually that field where we assess or measure the psychological constructs. यानी कि हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज साइकोमेट्री में करते हैं in order to make the testing of intelligence possible. जैसे कि हम सब जानते हैं, इंटेलिजेंस इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, या कोई भी साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट क्यों ना है, चाहे वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, इंटेलिजेंस है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, या और कोई बिहेवियरल ट्रेट. हम साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं. उनको मेजर करने के लिए वी हैव टू यूज द साइकोमेट्री, क्योंकि साइकोमेट्री इज दैट फील्ड जिसे हम किसी भी साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर सकते हैं. वी कैन मेक द टेस्टिंग और मेजरमेंट पॉसिबल by applying psychometry techniques. इसीलिए ईएल थर्स्टन ने साइकोमेट्रिक टेक्निक्स अप्लाई की, एंड ऑन द बेस ऑफ दोज साइकोमेट्री टेक्निक्स ईएल थर्स्टन हैज डेवलप्ड द थ्योरी. दैट थ्योरी इज नोन एज ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज के नाम से जाना जाता है. लियोस लियोन थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस
is also known as theory of primary abilities. It states that intelligence consists of 7 primary abilities, each of which is relatively independent of the others. Lewis Thurston later added 2 more primary abilities. Dear students, group factor theory of intelligence is also called as theory of primary abilities. Why this theory is called the theory of primary mental abilities? Dear students, primary means chief, which has having much more importance or significance. यानी कि अगर हमें इंटेलिजेंस को समझना है, we have to understand the concept of intelligence by means of its primary abilities. इसीलिए इसे कहते हैं theory of primary abilities. E.L. Thurston ने 7 primary abilities का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि अगर हमें इंटेलिजेंस को समझना है, डिस्क्राइब करना है, so we can understand by means of 7 primary abilities. Later on, E.L. Thurston ने 2 और primary abilities ऐड की. तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, first it was theory of 7 mental primary abilities. Now it is theory of 9 primary abilities. जो ये 9 primary abilities है, हम इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं और होली एंड सोली समझ सकते हैं. Dear students, according to E.L. Thurston, all the primary abilities are independent to one another. It means one ability will not support to the another ability. For instance, अगर किसी इंडिविजुअल की न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रांग है, जरूरी नहीं है वो मेमोरी एबिलिटी में भी स्ट्रांग होगा. किसी इंडिविजुअल की मेमोरी एबिलिटी स्ट्रांग हो सकती है, बट इट डज नॉट गिव अस गारंटी कि उसकी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग भी स्ट्रांग हो सकती है. अकॉर्डिंग टू द लियोन थर्स्टन, all the primary abilities are independent to one another. They are not related to one another. एक इंडिविजुअल की एक एबिलिटी स्ट्रांग है, इट डज नॉट मीन कि उसकी जो रेस्ट ऑफ एबिलिटीज है, चाहे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मेमोरी एबिलिटी है, इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी है, डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी है या परसेप्चुअल एबिलिटी है, वो भी स्ट्रांग हो सकती है. किसी एबिलिटी में वो स्ट्रांग हो सकता है, किसी इंडिविजुअल में 2 एबिलिटीज भी स्ट्रांग हो सकती है, बट इट डज नॉट गिव अस गारंटी कि हर कोई एबिलिटी उसमें स्ट्रांग हो सकती है. इसीलिए लियोस थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में डिस्क्राइब किया, दीज आर इंडिपेंडेंट टू वन अनदर. Dear students, now we will give the detailed description about the 9 primary abilities given by the Leon Thurston. Number 1, numerical factor. It involves the ability of an individual to do quick and accurate numerical calculations. It can be measured by checking the accuracy and speed of the person in solving various arithmetic problems such as addition, subtraction, multiplication, divide, etc. Numerical ability is that ability in which an individual is able to perform quick and accurate
numerical operations. For example, addition, subtraction, multiplication, etc. और हर एक इंडिविजुअल की न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये एक जैसी नहीं होती है। जिस इंडिविजुअल में न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रांग होती है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत फास्ट, आई मीन टू से यू क्विकली परफॉर्म कर पाता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या और मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जो है वो इंडिविजुअल्स कर पाते हैं। रमन ओजा वो मैथमेटिशियन है जिसे खिताब दिया गया है एवरी न्यूमेरिकल इन द मैथमेटिक्स इज बीइंग कॉल्ड द डार्लिंग ऑफ रमन ओजा। जिस तरह से कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है उसी तरह से रमन ओजा भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को फास्ट और एक्यूरेटली करता था। सो वी कैन हियर से दैट रमन ओजा की न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी। इसी तरह से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम उन बच्चों से एडिशन करने के लिए देंगे, सब्ट्रैक्शन करने के लिए देंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देंगे या और कोई मैथमेटिकल न्यूमेरिकल उन्हें देंगे तो वो एक्यूरेटली करते हैं, क्विकली करते हैं। उनमें उतनी सलाहियत होती है कि वो मैथमेटिकल क्वेश्चन को आसान के साथ समझते भी है और करते भी है। इट इज बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसीलिए थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में डिस्क्राइब किया देयर आर द 7 प्राइमरी एबिलिटीज which describes the individual's potential in particular field. I mean to say you कोई इंडिविजुअल मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, इट मीन्स उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बट इट डज नॉट गिव अस गारंटी और जो बाकी एबिलिटीज उस इंडिविजुअल की जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। Number 2, verbal factor. It refers to the ability of the person to understand and use various words, sentences, language, or other verbal content. This ability can be assessed through vocabulary tests, jumble word tests, and verbal or reading comprehension tests. Dear students, verbal factor is that factor which describes the individual's ability in order to make the sentences or simply use the language. जिन इंडिविजुअल्स की वर्बल एबिलिटी स्ट्रांग होती है उन इंडिविजुअल्स में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, आई मीन टू से यू कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और वो इंडिविजुअल्स जिनमें वर्बल फैक्टर, आई मीन टू से यू वर्बल एबिलिटी कमज़ोर होती है, हु आर वीक और पुअर इन वर्बल एबिलिटी, उनकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी या हम कह सकते हैं ओवरऑल कम्युनिकेशन पावर जो है वो वीक होता है। हम कैसे वर्बल एबिलिटी को एसेस कर सकते हैं? इफ वी हैव टू नो वर्बल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, देन वी हैव टू चेक दिस एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरी टेस्ट्स, जंबल वर्ड टेस्ट्स या रीडिंग कंप्रहेंशन टेस्ट्स। इन 3 टेस्ट्स के जरिए हम
वर्बल एबिलिटी को जज कर सकते हैं। Dear students, we will give the brief account of all these tests ताकि हम अंडरस्टैंड करेंगे what is verbal ability. Dear students, vocabulary test is that test जिसमें हम एक टेस्टी की या सब्जेक्ट की वोकैबुलरी चेक कर पाते हैं कि एक इंडिविजुअल में कितनी इनरिचड वोकैबुलरी पावर है, वो कैसे वर्ड्स और डिफरेंट वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। आई मीन टू से यू एक व्यक्ति की सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है, वो क्या ब्यूटीफुली सेंटेंस को बना पाता है कि नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द वोकैबुलरी पावर। जितनी कि एक इंडिविजुअल में वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो वो करेक्टली उतना सेंटेंसेस बना पाता है, वो करेक्टली लैंग्वेज को ब्यूटीफाई कर पाता है, उस इंडिविजुअल में उतनी इनरिचड वोकैबुलरी पावर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मीट, MEET, and meet, MEAT, meet. एक मीट means मिलना and second meat means flesh, I mean to say you गोश्त। इसी तरह से अगर हमें वोकैबुलरी चेक करनी होगी तो किस तरह से एक बच्चा जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स बताता है एक वर्ड के। लाइक वर्ड इज हियर, HAIR, हियर, हियर मीन्स बॉल। HERE, हियर मीन्स यहां। HEAR, हियर मीन्स सुनना। HEIR, हियर मीन्स वारिस। HARE, हियर मीन्स खरगोश, big animal. So there are the various meanings of a word here. It depends upon the vocabulary power. किस इंडिविजुअल में कितना vocabulary power है वो डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग बताएगा। सो नटशेल में हम कह सकते हैं वर्बल एबिलिटी उस इंडिविजुअल की स्ट्रांग हो सकती है जिसमें इनरिचड वोकैबुलरी पावर होगा, या अपार्ट फ्रॉम द वर्ड मीनिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन। हम वर्बल एबिलिटी में ये भी चेक करते हैं किस तरह से एक इंडिविजुअल अपनी लैंग्वेज में फ्रेजेस का इस्तेमाल कर पाता है। लाइक इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बारिश कुत्तों और बिल्लियों पे नहीं बरसती है, इट मीन्स बारिश घमासान की गिर रही है। एज यू सो सोशल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी, जैसी करनी वैसी भरनी। डू नॉट ट्राई टू बिकम द कंटेंशन इन बोन, इट मीन्स फसाद की जड़ मत बनो। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसी तरह से और अनलिमिटेड फ्रेजेस है जिन इंडिविजुअल्स की वर्बल एबिलिटी स्ट्रांग होती है वो ब्यूटीफुली फ्रेजेस और इडियम्स को यूज कर पाते हैं अपनी लैंग्वेज में। डियर स्टूडेंट्स, जंबल वर्ड टेस्ट में अनसिस्टमैटिक, अनऑर्गेनाइज्ड या रैंडम वर्ड्स एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। सपोज एक टेस्टी या हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसकी वर्बल एबिलिटी को हम जान पाते हैं जंबल वर्ड टेस्ट से। और इस टेस्ट में अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड्स दिए जाते हैं, उन वर्ड्स में इरेगुलरिटी होती है लेटर्स की। इनकरेक्टली हम लेटर्स को
फिक्स करते हैं वर्ड्स में, अनसिस्टमैटिक वो होते हैं, या बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। तो वर्ड्स को करेक्ट करने के लिए हम बच्चों की नॉलेज जो है या बच्चों की एबिलिटी जो है जंबल वर्ड टेस्ट से चेक कर पाते हैं। जो जंबल वर्ड टेस्ट होते हैं दीज आर टाइम बाउंड। हम बच्चे को इरेगुलर वर्ड देते हैं लाइक KROW। जो ही हम बच्चे को दिखाते हैं जंबल वर्ड टेस्ट में, और जिन बच्चों की वर्बल एबिलिटी स्ट्रांग होती है वो कहते हैं इट इज वर्क, WORK वर्क। IKLM, तो बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया MILK मिल्क। OTOR, बच्चे ने करेक्ट इस इनकरेक्ट वर्ड को भी किया जंबल वर्ड टेस्ट में, दैट इट इज ROOT रूट। ENKOWDELGE, तो बच्चे ने इस वर्ड को भी करेक्ट किया दैट इट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें बच्चे की या किसी भी इंडिविजुअल की वर्बल एबिलिटी को जानना है with the help of reading comprehension test, we can check the individual's verbal ability. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें पैसेज दिया जाता है सब्जेक्ट को या टेस्टी को, उस इंडिविजुअल को जिसकी हमें वर्बल एबिलिटी चेक करनी होगी, और पैसेज में लास्ट पे एंड पे क्वेश्चंस दिए होते हैं। और जिन बच्चों की वर्बल एबिलिटी स्ट्रांग होती है उनमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा होता है, वो पैसेज को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। दे नो हाउ टू आइडेंटिफाई द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। नंबर 3, स्पेस फैक्टर। इसे हम स्पेशल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यानी कि ये वो एबिलिटी है जिसमें एक इंडिविजुअल एक्यूरेटली और करेक्टली विजुअल्स को एनालाइज और अंडरस्टैंड कर पाता है। लेट इट एज्यूम, अगर हम एक बच्चे को कोई पिक्चर या फोटोग्राफ दिखाएंगे ऑन द बेस ऑफ स्पेशल इंटेलिजेंस, द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड द इमेज और फोटोग्राफ इजीली एंड करेक्टली, क्योंकि इन इंडिविजुअल्स में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हाईली मैच्योर्ड और डेवलप्ड होती है। They are able to operate the ideas in the space. Dear students, स्पेशल इंटेलिजेंस जो है ये हमें हेल्प करती है मैप रीडिंग में। जो इंडिविजुअल्स मैप्स को क्विकली अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं उनमें स्पेशल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। स्पेशल इंटेलिजेंस or space ability, it helps also to understand the places which has already visited by the person. इन्हें complete knowledge होती है रूट्स के बारे में। इसीलिए स्पेशल इंटेलिजेंस is dominantly found among pilots, painters, sailors, आर्किटेक्ट्स। इनकी स्पेशल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर एरोप्लेन का रडर जो है वो टेक्निकल खराबी की वजह से डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा तो स्पेशल एबिलिटी विल हेल्प टू द पायलट टू सेफली लैंड द एरोप्लेन। डियर स्टूडेंट्स, जो स्पेशल एबिलिटी होती है it is also dominant among the sailors, architects and painters. जो समुद्री सफर तय करते हैं ऑन द बेस ऑफ स्पेशल इंटेलिजेंस, वो अप्रोप्रिएटली अपने रूट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। या आर्किटेक्ट्स की बात हम करेंगे
आर्किटेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग स्पेशल एबिलिटी होती है, इसीलिए वो 100 स्टोरी बिल्डिंग भी बनाते हैं। जिन इंडिविजुअल्स की स्पेशल एबिलिटी वीक होती है, ऑलवेज दे बिकम्स विक्टिम्स ऑफ कंफ्यूजन। आई मीन टू से यू, जिनमें डेफिसिट्स होते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस के, वो इंडिविजुअल कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें राइट और लेफ्ट के बारे में फर्क नहीं करनी आती है, हमें राइट डायरेक्शन से जाना है या लेफ्ट डायरेक्शन से जाना है, हमें ईस्ट की डायरेक्शन से जाना है या वेस्ट की डायरेक्शन से जाना है। नंबर 4, memory factor. It refers to the ability of the person to quickly memorize the various concepts or phenomena and retaining them for a longer period of time. The ability to recall the learned concepts by the students during the exams is largely dependent on this primary mental ability factor. Dear students, as we know that power of recall and retention is called memory. लेकिन मेमोरी एबिलिटी भी एक जैसी नहीं होती है। एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन मेमोरी पावर। किसी की मेमोरी एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है और किसी इंडिविजुअल की मेमोरी एबिलिटी बहुत वीक होती है। कोई तो ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी मेमोरी डल होती है। इट मीन्स इट इज द एबिलिटी in which an individual is able to recall and retain the information. जिन इंडिविजुअल्स की मेमोरी एबिलिटी स्ट्रांग होती है, उन इंडिविजुअल्स में फोन मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि वो फोन नंबर्स को याद कर पाते हैं आराम के साथ। जब भी हम एक इंडिविजुअल को कहेंगे किसी रिलेटिव का फोन नंबर, बिना चेक करके वो रिलेटिव का फोन नंबर ज़बानी कह पाता है। या ऑफिशियल फोन नंबर्स जिस तरह से डायरेक्टरी में फीड होते हैं, उसी तरह से उनकी मेमोरी में वो फीड रहते हैं। या व्हीकल नंबर्स, प्रीवियसली हमने एग्जांपल ऑलरेडी दी है। यूएसए में एक पर्सन था, जब भी उसे पूछा जाता था किसी व्हीकल के नंबर के बारे में, वो सिर्फ उस व्हीकल का नंबर नहीं बता पाता था, बल्कि ऑल्सो द पर्सन वॉज एबल टू से कि वो व्हीकल मैंने कहाँ पर देखा, कब देखा, और उस व्हीकल का इंजन नंबर क्या है, नंबर प्लेट क्या है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता था। इट मीन्स द पर्सन possesses वेरी मच स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ रिटेंशन एंड पावर ऑफ रिकॉल। इसी तरह से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, जब वो एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो वो बहुत कंटेंट लिख पाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख पाते हैं। इट मीन्स जो ज़्यादा कंटेंट लिखते हैं उनमें पावर ऑफ रिटेंशन और रिकॉल बहुत स्ट्रांग है। आई मीन टू से यू, मेमोरी एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। मेमोरी एबिलिटी से हम एक इंडिविजुअल की मेमोरी पावर्स के बारे में जान सकते हैं। नंबर 5, वर्बल फ्लुएंसी और वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर। The ability to list words repeatedly in certain designated categories, such as words that begin with the particular letters of the alphabet. For instance, by selecting a particular alphabet A to Z, we will ask to the subject, name different countries, fruits and flowers, etc. with a given time period. For example, tell me name of the countries, fruits and flowers started from the letter A. Dear students, verbal fluency or word fluency, it is another important ability possessed by an individual.
यानी कि ये वो एबिलिटी है जिसमें क्विकली, फास्टली, स्विफ्टली और हम कह सकते हैं स्पीडली एक इंडिविजुअल वर्ड्स को यूज कर पाता है। यानी कि उसकी फ्लुएंसी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जिन इंडिविजुअल्स में वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी स्ट्रांग होती है उनका कम्युनिकेशन पावर भी हाई होता है। दे आर स्पीकिंग द लैंग्वेज विदाउट टेकिंग द ब्रेक्स। वो क्विकली लैंग्वेज स्पीक कर पाते हैं क्योंकि उन इंडिविजुअल्स में वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम बच्चे को कहेंगे ए से, यानी कि लेटर ए से कंट्रीज के नाम बताओ, फ्रूट्स के नाम बताओ या फ्लावर्स के नाम बताओ, लाइक अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंडोरा, अंगोला, अर्जेंटीना, आर्मीनिया, अरूबा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अजरबैजान। ये वो कंट्रीज है जिनका नाम लेटर ए से या अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम द कंट्रीज, अगर हम इन बच्चों से पूछेंगे फ्रूट्स के बारे में, लेकिन वो फ्रूट्स जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं तो वो क्विकली बता पाते हैं विदाउट टेकिंग द ब्रेक्स, लाइक अबुया, एरोला, एकी, एप्पल, एप्रिकॉट, एवोकाडो एंड एकीबा। These are the various fruits जो स्टार्ट होते हैं लेटर ए से। एंड अपार्ट फ्रॉम द फ्रूट्स, वो बच्चे फ्लावर्स के नाम भी बता पाते हैं क्योंकि उनकी जो वर्ड फ्लुएंसी है वो बहुत स्ट्रांग है, लाइक एल्पाइन, एस्टर, अफ्रीकन लिली, एनोपनाई, एमेरिलस, एविनस, एरम लिली, एस्ट्रेंटिया। These are the various flowers which start us from letter A। तो हम कह सकते हैं नटशल में word fluency is that ability in which an individual is able to speak fluently without hesitation or taking the breaks. Number 6, inductive reasoning. Inductive reasoning is an ability of drawing the conclusions by going from part to the whole or specific to the general. Inductive reasoning is also called bottom-up reasoning. Dear students, inductive reasoning is that reasoning which starts from the part or ends at whole. यानी कि अगर हमें whole को अचीव करना है तो हमें पार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इसे कहते हैं बॉटम अप रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू टीच द पार्ट्स ऑफ बॉडी, हम डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं पढ़ा सकते हैं या ह्यूमन बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमें स्टार्ट करना है पार्ट से। तो आफ्टर ऑल, when we will give complete information about the various parts, automatically in aggregated manner we will achieve the concept of whole. लेकिन इसके लिए कंडीशन है, we have to start from the journey from specific to general, या हम कह सकते हैं part to whole. For instance, head, neck, shoulder, chest, stomach, elbow, hand, finger, cough, knee, heel, toe, foot, footnail। यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के दी तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिर मिल गई एज ए होल
दैट इज ह्यूमन बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हम कह सकते हैं इंडक्टिव रीजनिंग इज दैट रीजनिंग which starts from specific and ends to the general concept, या हम कह सकते हैं which starts from the part and ends at the whole। इसे बॉटम अप रीजनिंग भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रीजनिंग के मुतालिक क्वेश्चन आस्क भी किए जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, स्पेशली नेट एंड सेट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन होता है बॉटम अप रीजनिंग इज नोन एज, नीचे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए होता है इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी हो सकता है डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी हो सकता है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी हो सकता है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज इंडक्टिव रीजनिंग, जहां पर हम पार्ट से स्टार्ट करते हैं और होल पे खत्म करते हैं। नंबर 7, deductive reasoning. Dear students, deductive reasoning is the opposite to inductive reasoning. It is that reasoning in which we start from the whole and ends at the bottom. हम whole से start करते हैं तो part पे खत्म करते हैं। Deductive reasoning is also known as top-down reasoning. इसे top-down reasoning भी कहते हैं। अगर हमें बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है तो हम बच्चे को पहले पार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते हैं, बल्कि होल का कॉन्सेप्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल, होल इज द ह्यूमन बॉडी, तो फिर पहले बच्चे को हम कहेंगे दिस इज ह्यूमन बॉडी, फिर उसके बाद कहेंगे ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हेड, नेक, शोल्डर, चेस्ट, एल्बो, स्टोमक, सो ऑन एंड सो फॉर। इसी तरह से अगर बच्चे को हमें कॉन्सेप्ट देना है फ्लावर के बारे में, पहले हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के नहीं दे सकते, लाइक पेटल्स, सेपल्स, मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, सो ऑन एंड सो फोर, बट वी विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट फ्लावर, दिस इज फ्लावर एंड हाउ दिस फ्लावर कंटेन्स डिफरेंट पार्ट्स। सो दिस टाइप ऑफ रीजनिंग इज नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग। सेम वे जिस तरीके से इंडक्टिव रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस आ किए जाते हैं, तो डिडक्टिव रीजनिंग में से भी क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू कीप इट इन द माइंड, दिस रीजनिंग इज नोन एज टॉप डाउन रीजनिंग। नंबर 8, परसेप्चुअल फैक्टर। परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, identification and interpretation of sensory information in order to represent and understand the presented information or environment. Perception allows people to take the sensory information and make into something meaningful. It is also necessary for people to identify potential dangers and stay safe. Perceptual ability is that very ability in which we will interpret the sensory information. जैसे कि हम सब जानते हैं, senses are called the gateways of knowledge. Every bit of knowledge is result of sensory organs. जब भी हम senses के हेल्प से किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आई मीन टू से यू उसमें मीनिंग ढूंढ पाते हैं, दैट इज नोन एज परसेप्शन। यानी कि व्हेन वी फाइंड द मीनिंग फ्रॉम द सेंसरी डेटा। डियर स्टूडेंट्स, परसेप्चुअल एबिलिटीज ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हम ये एबिलिटी हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ही हम बच्चे को दिखाते हैं कैट की पिक्चर, तो वह कहता है, वो मीनिंग ढूंढता है, कैट है, एक एनिमल है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डॉग। इसी तरह से कोई फ्रूट हम दिखाते हैं तो बच्चा जो है वो डिफरेंशिएट कर पाता है, हाउ मैंगो इज डिफरेंट फ्रॉम द एप्पल। डियर स्टूडेंट्स, परसेप्चुअल एबिलिटी प्रोटेक्ट्स बेसिकली एन इंडिविजुअल फ्रॉम द पोटेंशियल डेंजर्स। फॉर इंस्टेंस, सेफ रोड क्रॉसिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कुत्ते को देहात से लाएंगे तो शहर में छोड़ेंगे, तो उस कुत्ते को मैक्सिमम चांस होता है रोड एक्सीडेंट शिकार होने की, क्योंकि इसे
रोड क्रॉसिंग के बारे में नॉलेज नहीं होती है, वो कोई ना कोई एरर करता है तो जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। सेफ रोड क्रॉसिंग के लिए परसेप्चुअल एबिलिटी हेल्प करती है। जितनी की परसेप्चुअल एबिलिटी होती है तो उतना आप सेफली ड्राइव भी कर सकते हैं और रोड क्रॉस भी कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, सेफ लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन, अगर हमें एरोप्लेन को सेफली लैंड करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन। इसीलिए पायलट्स में जो परसेप्चुअल एबिलिटी होती है, इट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। वो सिचुएशन को समझ पाते हैं कि स्पेस में कौन सी तब्दीली आती है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इन टर्म्स ऑफ अदर इंटरवेंशन फैक्टर्स। जो म्यूजिशियंस होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग होती है perceptual ability. On the basis of perceptual ability, they are able to difference between different musical pitches. वो different musical pitches discriminate कर पाते हैं on the basis of perceptual ability. तो nutshell में हम कह सकते हैं perceptual ability is that ability in which an individual is able to interpret and understand the sensory information accurately and perfectly. And number 9th, problem solving ability. Dear students, it is that ability in which an individual is able to solve the problem independently without taking the support of others. अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर्स, उसे किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो हर एक प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली, एक्यूरेटली, परफेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। किसी भी चीज को वो खुद समझ पाता है विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर्स, एंड दिस एबिलिटी इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जैसे कि ऑलरेडी एक थ्योरी है, दैट थ्योरी इज नोन एज गेस्टल्टियन थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनसाइट। किस तरह से एक चैंपियन जो है वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। इट मीन्स दैट द चैंपियन possesses स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम कहते हैं वन मैन आर्मी, व्हाट डज इट मीन वन मैन आर्मी? वन मैन आर्मी मीन्स द पर्सन इज एबल टू सॉल्व one's own problems without taking the support of others। जिन जिन इंडिविजुअल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है वो हर कोई काम खुद कर पाते हैं। दिस इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, जो ही हम ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे साइकोलॉजी का, अकॉर्डिंगली जो बाकी पेपर्स है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, या सीटेट में जो पेपर्स है, हम टाइमली हर एक पेपर को डिस्कस करेंगे। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग।